PHP is again and server-side technologies. In your syllabus, we have to study the three server-side technologies. Two we have studied in Unit 3, that is Servlet and JSP, which are purely based on Java technology. And in Unit 4, we are studying completely different server-side technology, that is a PHP. Everybody you have heard about the PHP. In many or most of the websites are designed under the PHP. In this unit, it is divided in three parts. First is the PHP. We have to study completely all about how to write down a code, how to run the code in PHP, and how to declare variable, print statement, MySQL connectivity, and number of things. Second part is WAP and WML, and third is Ajax, because Ajax mainly used with the PHP. So first we'll start with the part of PHP. In PHP, we have to study the things like introduction to PHP, its features, sample code, how is its syntax, conditional loops, how to write down a function, string manipulation, arrays and function, HTML form handling, when any data is coming from HTML, how to handle through PHP, cookies and session, and PHP and MySQL connectivity. Mostly with PHP, MySQL is using. So let's start with PHP introduction. PHP is an acronym for PHP Hypertext Preprocessor. PHP is widely used open source scripting language. PHP scripts are executed on the server side, and PHP is free to download and use. So PHP is a freeware. Now what is PHP file? PHP files, it can itself contain textual data, HTML tags, CSS tags, JavaScript and PHP कोड. मतलब PHP एक्सटेंशन जब आप फाइल को देते हो तो उसमें ना बल्कि PHP का कोड रहता है, उसके साथ आप PHP के साथ HTML का कोड, CSS का कोड, JavaScript का कोड भी अटैच कर सकते हो. PHP code are executed on server and the result is returned to the browser as a plain HTML. PHP का कोड सर्वर पे एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट वापस क्लाइंट को रिटर्न किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ HTML. PHP files have extension as .php. Now what you can do with the PHP? PHP can generate dynamic page content. जब भी आपको कोई डायनामिक वेबसाइट बनानी है, so PHP there. It can also create, open, read, write, delete and close files on server. You can collect form data. HTML में जो आप फॉर्म बनाते हो वो फॉर्म का डेटा अगर आपको बैकएंड में डेटाबेस में स्टोर करना है, कलेक्ट करना है, still PHP can use. It can also send and receive cookies. You can add, delete, modify data in your database. PHP can be used to control user access. PHP can encrypt data. जब आपको आपके डेटा को security provide करनी है तो भी वो possible है. With PHP, you are not limited to output HTML. You can output images, PDF files, and even Flash movies. You can also output any text such as XHTML and XML. There are many features of PHP, like PHP runs on various platforms, like तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, वैसे भी बोल सकते क्योंकि PHP काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे रन होता है, लाइक विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, मैकिंटोश. तो बहुत सारे वेरियस प्लेटफॉर्म PHP को सपोर्ट करते हैं. PHP is compatible with almost all web servers like Apache Tomcat, IIS. हमको पता है कि सर्वर साइड का कोड रन करना है तो आपको वेब सर्वर लगता है. So whatever the web servers are available, PHP supports all web servers. PHP supports a wide range of database. हमने सिर्फ PHP and MySQL हमेशा सुना है, but apart from MySQL, your MongoDB, Simple SQL, number of databases are also supported by PHP. PHP is free and you can download it from official PHP source www.php.net.
PHP is easy to learn and run efficiently on server side. Now we'll start with actual syntax of PHP. Whenever you want to write down a code in a PHP, just open your notepad or any document and start writing a script. The PHP start with the tag like triangular bracket question mark PHP. This is a start. इन बिटवीन आपको जो भी कोड लिखना है, जैसे यहाँ पे आपके सब PHP का जितना भी कोड है, इफ एल्स लूप, फॉर लूप, printf statement, all goes here. And जब आपको PHP का कोड एंड करना है, you have to end it with question mark and triangular bracket. और आपको सेव करना है इसको .php एक्सटेंशन के साथ. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इन दिस एग्जाम्पल, यहाँ तक HTML का कोड है और HTML के अंदर हमने वापस कुछ PHP का कोड लिखा है, वापस HTML का कोड मीन्स, लेकिन इसको हम एक्सटेंशन देंगे .php itself. जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क PHP या कहीं पे भी कोड में आ रहा है तो उसका एक्सटेंशन .php होता है. बट PHP के फाइल में आप कुछ HTML का भी कोड अटैच कर सकते हो, CSS का प्लस PHP का भी कोड क्या कर सकते हो, आप अटैच कर सकते हो. So we'll see how to write down this code and how to run this. मैं आपको रन कैसे करना है वो भी बताती हूँ. तो सबसे पहले PHP का कोड लिखा जाता है सिंपल. आप कोई भी नोटपैड के अंदर आप इसको लिख के .php से सेव कर सकते हो. लेकिन आपको इसको जब रन करना है तो आपको अपाचे टॉमकैट चाहिए. तो उसमें भी बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं. इंस्टेड ऑफ ओनली इंस्टॉलिंग अपाचे टॉमकैट, यू कैन इंस्टॉल द XAMPP सर्वर, ZAMPP. तो खाली गूगल पे जाके XAMPP डाउनलोड अगर आप डाल दोगे तो XAMPP सर्वर डाउनलोड करके उसका .exe फाइल आता है. उसको अगर आप जैसे रन करोगे तो C:* पे एक XAMPP नाम का फोल्डर आपका बन जाता है. ओके, और एक उसमें आपको कैसे रन करना है दैट आई विल स्टार्ट. तो जैसे मैंने ऑलरेडी XAMPP जो है ये डाउनलोड करके रखा है मेरे मशीन पे. यहाँ पे सर्च में जैसे ही मैं XAMPP ZAMPP डालूंगी तो आपको यहाँ पे XAMPP कंट्रोल पैनल करके आएगा. जैसे जब आप इंस्टॉल करोगे यू विल फाइंड आउट दिस XAMPP कंट्रोल पैनल. इसको खाली आप ओपन कीजिए यहाँ से, या फिर यहाँ से आप यू जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस. दिस इज अ वेरी प्राइमरी स्टेप दैट यू हैव टू डू एवरी टाइम व्हेन यू वांट टू रन अ कोड. यहाँ पे आपको दिखेगी कि XAMPP के अंदर इनबिल्ट कितने सारे मॉड्यूल्स है. लाइक फर्स्ट इज अपाचे टॉमकैट इज वन मॉड्यूल, सेकेंड इज MySQL, FileZilla, Mercury एंड Tomcat. तो इसमें से हमको जो लगने वाला है दैट इज फिलहाल सिंपल PHP कोड के लिए सिर्फ अपाचे. जब आपको बैकएंड कनेक्टिविटी करनी है PHP MySQL तब आपको MySQL लगेगा. तो भी अगर आप यहाँ पे देखोगे कि एक्शंस में यहाँ पे दोनों जगह पे स्टार्ट मतलब क्या कि अभी ये स्टॉप मोड में है और अगर आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी. तो फॉर PHP यू रिक्वायर टू स्टार्ट अप अपाचे सर्विस. तो यहाँ पे जाके मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे उसने स्टेटस चेंज कर दिया कि अपाचे जो है अभी ये रनिंग मोड में आ गया है. ओके, एंड इट इज वर्किंग ऑन पोर्ट नंबर 80. 80 is a port number for HTTP protocol on local host. तो ये सब स्टेप 1 मैंने किया. XAMPP डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद कंट्रोल पैनल में जाके हमने यहाँ से अपाचे के आगे स्टार्ट को क्लिक किया. मैंने इसको डाउनलोड मतलब मिनिमाइज करके रखा है. सेकेंड, अभी हम लोग यहाँ पे नोटपैड ओपन करेंगे. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वेयर टू सेव योर PHP डेटा. तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया. लाइक आपको ये एक्सेप्शनल है, HTML लिखना है नहीं लिखना है, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विथ .php, मतलब PHP से भी कर सकते हो स्टार्ट. सो PHP मैंने लिख दिया. दिस इज अ स्टार्टिंग टैग ऑफ PHP एंड दिस इज द एंड ऑफ PHP. यहाँ पे मैंने बॉडी टैग को एंड कर दिया एंड HTML टैग को एंड कर दिया. और इसके अंदर मुझे हेलो वर्ड ये मैसेज प्रिंट करना है बट थ्रू PHP. तो PHP के अंदर मैंने प्रिंट करने के लिए एक स्टेटमेंट यूज होता है दैट इज echo. echo मतलब जब आपको कोई भी टेक्सचुअल डेटा या फिर किसी वेरिएबल का डेटा यूजर को वेबसाइट पे प्रिंट करना है, सो दैट टाइम आइदर यू कैन यूज प्रिंट स्टेटमेंट, बट मोस्ट प्रोबेबली इन PHP
they are using a echo statement. तो यहाँ पे echo and in double quote whatever you want to print you can use that. यहाँ पे सपोज मैंने डाल दिया my first PHP code, डबल कोट कंप्लीट किया and everything you have to end with a semicolon. बहुत सिंपल कोड लिखा है मैंने. इसको अभी सेव कैसे करना है, इसको फाइल एंड सेव आपको करना है XAMPP फोल्डर के अंदर. तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि C कोलन के अंदर एंड देयर इज एन, जैसे आप XAMPP इंस्टॉल करते हो डाउनलोड करके, तो C कोलन पे मैंने इसका एक फोल्डर है जो बन गया था XAMPP नाम का. वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद आपको एक फोल्डर मिलेगा htdocs नाम का. हमेशा आपके हर फाइल htdocs में ही सेव करना है XAMPP फोल्डर के. htdocs पे क्लिक किया मैंने. उसके बाद यहाँ पे आइदर आप एक आपका खुद का फोल्डर बना के सेव करो तो भी चलेगा, डायरेक्टली सेव किया तो भी चलेगा. तो मैं यहाँ पे एक पहले फोल्डर बना लेती हूँ, दैट इज मोर इजी. तो फोल्डर बनाया हमने एक, सपोज हम देते हैं एग्जाम्पल या फिर PHP डैश कोड नाम का मैंने एक फोल्डर बनाया. ये फोल्डर का नाम आपको याद रखना है, ये हमेशा जब आपको कोड रन करना रहेगा तब लगेगा. तो PHP डैश कोड को डबल क्लिक किया यहाँ पे, PHP डैश कोड, यहाँ पे .txt फाइल आया है. यहाँ से जाके आपको ऑल फाइल सिलेक्ट करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने ये ऐसे ही रखोगे तो आपका PHP का कोड रन नहीं होगा. सो यू हैव टू क्लिक ऑन ऑल फाइल्स. फाइल को जो भी नाम देना है वो दे दो. जैसे मैंने यहाँ पे सपोज दे दिया इंडेक्स डॉट एंड एक्सटेंशन मैंने दे दिया PHP. आप कोई भी नाम दे सकते हो, खाली .php एक्सटेंशन होना चाहिए. यहाँ पे ऑल फाइल्स होना चाहिए. और यहाँ पे याद रखिए कि htdocs के अंदर आपको सेव करना है. आप htdocs के अंदर डायरेक्टली सेव करो या फिर किसी फोल्डर के अंदर सेव करो तो भी चलेगा. अब इसको हमने सेव कर दिया. इसको रन कैसे करना है, सबसे पहले आपका जो भी ये रहेगा, फायरफॉक्स बोलो या फिर मोजिला, व्हाटएवर यू आर यूजिंग, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे प्रेस करो लोकल होस्ट, सिंपल लोकल होस्ट एंड प्रेस एंटर. लोकल होस्ट प्रिंट करने के बाद बाय डिफॉल्ट यहाँ पे XAMPP दिखना चाहिए. जैसे यहाँ पे XAMPP दिखेगा इसका मतलब XAMPP आपका सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है आपके मशीन पे. तो ये आपको समझ में आएगा. अगर ये इंस्टॉल हो गया है तो सेकेंड स्टेप हमको क्या करना है, यहाँ पे डैशबोर्ड जो आया है इसको निकाल दिया मैंने, सिर्फ लोकल होस्ट डैश. अब जो मैंने फोल्डर का नाम रखा था जिसमें मैंने PHP फाइल को सेव किया था, क्या था फोल्डर का नाम स्टूडेंट्स? PHP कोड या PHP डैश एंड हम लोगों ने नाम लिया था कोड डैश. फाइल का नाम लिखा था मैंने index.php. तो लोकल होस्ट के बाद आपके फोल्डर का नाम और फाइल का नाम. अगर आपने डायरेक्टली htdoc के अंदर लिखा है तो फोल्डर का नाम स्किप हो जाएगा, सिर्फ फाइल का नाम आ जाएगा. तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी हमने इको स्टेटमेंट में लिखा था वो यहाँ पे क्या हो गया है, प्रिंट हो गया है PHP से. अगर आपको लगता है कि इसको मुझे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, जो भी करना है, तो इको के अंदर PHP में इको स्टेटमेंट के अंदर आप कोई भी HTML का टैग यूज कर सकते हो. जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे H1 टैग यूज करना है. तो ये पूरा जो कोड है ये थोड़ा बोल्ड हो जाएगा. इसको Ctrl S किया मैंने कोड में चेंज करने के बाद और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश किया. तो जो भी आउटपुट है उसमें क्या हो गए, चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गए. अंडरस्टूड हाउ टू रन PHP कोड स्टूडेंट्स? रिपीट करो एक बार. मॅम. यस मॅम, आपण सबलाईम एडिटर मध्ये पण हे लिहू शकतो ना? हो, तुम्ही कुठे PHP चा पण लिहू शकता, कुठे पण लिहू शकता. मी सिंपल टेक्स्ट नोटपॅड मध्ये दाखवला. म्हणजे कोणाकडे कोणतंच एडिटर नसेल तरी तुम्ही कसं रन करू शकता. आप कोई भी यूज कर सकते हो. आप वर्ड यूज कर सकते हो, आप सबलाइम एडिटर, नोटपैड प्लस कोई भी एडिटर यूज करो, लेकिन सिर्फ आपकी फाइल आपको खास सेव करना है. दैट इज भी इम्पोर्टेंट. आपकी फाइल सेव होनी चाहिए कहाँ पे, XAMPP के htdoc फोल्डर के अंदर. अगर वहाँ पे आप सेव करते हो .php से तो कोई प्रॉब्लम नहीं. यू कैन यूज एनी एडिटर दैट टाइम. ओके. और किसी को कुछ यस पूछना मैम. है? और किसी को कुछ पूछना है?
देखो मैम वो सेविंग का फिर से बताओ ना। हाँ ठीक है चलेगा। हम वापस पूरे स्टेप एक बार देखते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम कैसे डाउनलोड करना है उसका भी एक वीडियो है, आप अगर चाहिए तो वो मैंने स्किप किया। आप अगर यहाँ पे यूट्यूब पे जाएंगे तो मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर में वो किया हुआ था, तो उसका लिंक चाहिए तो आपको, यानी अगर किसी को नहीं पता है कि जैम कैसे इंस्टॉल करना है, आप यूट्यूब पे जाके और सर्च में खाली आप डाल दो लाइक PHP स्पेस एंड भावना खिमसरा, बस इतना डाल दो मेरे नाम से PHP का। तो यहाँ पे PHP एंड MySQL एग्जाम्पल यूजिंग जैम, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ 4 या 5 मिनट के बाद जैम इंस्टॉलेशन के जो स्टेप्स है, तो यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपरली है कि जैम कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, तो पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अदरवाइज इट्स वेरी इजी, गूगल पे जाके खाली आपको जैम डाउनलोड करके डाल दिया तो भी हो जाता है। देखो जैसे आप जैम डाउनलोड करते हो उसका exe फाइल, उसको बाद में आपको रन करना है। रन करने के बाद आपके C:* पर एक फोल्डर बन जाता है जैम नाम का। तो स्टेप 1 हम लोगों को क्या करना है, मैं यहाँ से पहले स्टार्ट से बताती हूँ। सबसे पहले आप चेक करो कि आपके C:* पे जाओ, जैसे आप इंस्टॉल करोगे, और C:* पे चेक करो कि जो भी जिस भी ड्राइव में आपने डाउनलोड किया कि वहाँ पे जैम नाम का फोल्डर क्रिएट हुआ है या नहीं। अगर क्रिएट होता है तो डबल क्लिक करके चेक कीजिए कि वहाँ पे सेकेंड htdocs नाम का फोल्डर है या नहीं। सो बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फोल्डर, क्योंकि इसमें जब हम सेव करेंगे तो ही आपके कोड रन होने वाले हैं। तो स्टेप 1 हो गई, आप चेक करो कि कौन से ड्राइव में आपका जैम का फोल्डर बना है और उस फोल्डर के अंदर htdoc फाइल है या नहीं। स्टेप 1। स्टेप 2, अगेन गो विथ दिस सर्च। ओके, यहाँ पे आप विंडोज के सर्च में जाके और मैंने जैम लिखा। जैम लिखने के बाद यहाँ पे जैम कंट्रोल पैनल आता है, जैम कंट्रोल पैनल को स्टार्ट किया मैंने। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पर भी टिक नहीं है। ओके, तो हमको जो भी सर्विस चाहिए है वहाँ पे जाके स्टार्ट बटन पे क्लिक करो। PHP ये सर्वर साइड लैंग्वेज है। सर्वर साइड लैंग्वेज के लिए आपको इसमें अपाचे सर्विस जो है वो लगती है, अपाचे टॉमकैट की। इसके लिए हमने इसको स्टार्ट किया। तो जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे ये 2 पोर्ट पे स्टार्ट हो जाता है। पोर्ट 80 पे स्टार्ट हो गया और पोर्ट 443 पे इसकी सर्विस स्टार्ट हो गई। 80 इज फॉर HTTP प्रोटोकॉल। तो जो भी आपके क्लाइंट सर्वर की जो भी एप्लीकेशन हम लोग बनाने वाले PHP के, वो रन हो जाएंगे। तो ये स्टेप 2 हो गया। हमने क्या किया, अपाचे की सर्विस को स्टार्ट किया। यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद क्या लिख के आ रहा है, स्टॉप। स्टॉप इंडिकेट, इसका मतलब यहाँ पे ये रनिंग स्टार्टेड है। आपको जब भी स्टॉप करना है इस बटन पे क्लिक करना है, दैट्स इट। तो स्टेप 2 हम लोगों ने कंट्रोल पैनल की सर्विस को स्टार्ट किया। नाउ स्टेप 3, आपको चेक करना है कि जैम्प वापस सच में इंस्टॉल प्रॉपरली हुआ है कि नहीं। तो हम यहाँ पे गए, फायरफॉक्स पे बोलो या क्रोम पे, और सिर्फ यहाँ पे हमने प्रेस किया लोकल होस्ट एंड प्रेस इंटर। तो बाय डिफॉल्ट प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे जैम दिखना चाहिए। अगर यहाँ पे जैम करके आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारी जैम की सर्विस स्टार्ट हो गई है पोर्ट 80 के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, अभी देखो काफी बार क्या होता है कि अगर आपने टॉमकैट भी इंस्टॉल किया रहेगा आपके मशीन में, तो और अगर आप लोकल होस्ट लिखते हो तो काफी बार क्या होता है कि टॉमकैट की सर्विस बाय डिफॉल्ट स्टार्ट हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो लोकल होस्ट /डैशबोर्ड करके आप लिखो और चेक करो जैम स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। ये हो गया स्टेप 3। स्टेप 4, जो भी कोड लिखना है आपका, जो भी सबलाइम एडिटर या फिर नोटपैड एनीथिंग जहाँ पे भी आपको लिखना है वहाँ पे आपको जो भी कोड, सिंपल कोड लिखो पहले। अब इसमें अगर मैं ये निकाल भी दूँ तो भी मेरा कोड रन होने वाला है, बिकॉज इसका एक्सटेंशन मैंने .php दिया है। तो PHP के अंदर जो लिखा हुआ कोड है वो मुझे रन करना है। तो $PHP, और जो भी प्रिंट करना है इको में जाके मैंने इसको प्रिंट किया, सेमीकोलन दिया। इसको सेव कैसे करना है, फाइल, इसको हम करेंगे सेव एज। आपके C:* पे जाओ, देन जहाँ पे भी आपका जैम फोल्डर है जैम फोल्डर पे क्लिक किया। जैम फोल्डर में htdoc फोल्डर लिया हमने। आप यहाँ पे भी डायरेक्ट सेव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सब एग्जाम्पल एक जगह पे होने चाहिए। इसके लिए मैंने एक फोल्डर बनाया था यहाँ पे php-code वाला। कोई भी एक फोल्डर बना लो, उस फोल्डर को डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ पे जाके ऑल फाइल्स करना है और जो भी फाइल का नाम आपको देना है
Suppose I have given a1.php. ओके, तो यहाँ पे देखो जैसे मैं इसको सेव किया मैंने, तो ये फाइल का नाम a.php हो गया। ये हो गई फाइल सेव htdoc के अंदर। जब इसको आपको रन करना है, वापस हम गए फायरफॉक्स या जो भी आप यूज़ कर रहे हो क्रोम पे, एंड यहाँ पे हमने डाल दिया लोकल होस्ट एंड स्लैश। अगर हमने कोई फोल्डर लिया है तो फोल्डर का नाम हमको लेना है php-code स्लैश जो भी फाइल का नाम है वो फाइल का नाम डॉट php एंड इंटर। व्हाट हैपन, क्या नाम सेव किया हमने? अच्छा ए नाम है, खाली a1 नहीं है, इट वाज जस्ट a। ओके, तो अगर ऐसा कोई एरर आता है तो आपको फाइल का नाम, आपके फोल्डर का नाम ये प्रॉपर्ली चेक करना है कि जो लिखा है वही है क्या। तो यहाँ पे आपका कोड क्या हो जाता है, रन हो जाएगा। इज दिस ओके नाउ? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। ये हो गया Yes, सिंपल। ma'am. सिंपल प्रिंट कैसे करना है, वेरिएबल डिक्लेरेशन या प्रिंट कैसे करना है ऐसे। नाउ नेक्स्ट विल सी, कोई एक जन खाली मेरे को आज की अटेंडेंस भेज देना अभी निकाल के। कौन मुझे सेंड करेगा? एनीवन? What, ma'am? अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट खाली मेरे को भेजना कोई एक अभी लेके। जी मैम। ओके, सेकेंड जो एग्जांपल है, हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। देखो हम लोगों ने देखा कि जब हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं तो var लिखते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए। जब हम JSP और सर्वलेट यूज करते हैं तो एक्चुअल स्ट्रिंग, इंट ऐसा लिख के और वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। So whenever you want to declare a variable in PHP, you have to use a dollar symbol. तो डॉलर सिंबल इन PHP इंडिकेट इट इज एन वेरिएबल, और इसके आगे आपको डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग हो जाता है। यानी अगर आपने $x इक्वल टू 5 लिखा तो $x मतलब ये x वेरिएबल क्या बन गया, इंटीजर। अगर आपने x में 5.5 स्टोर किया तो ये बन गया फ्लोट। अगर आपने $x में हेलो वर्ल्ड लिख दिया तो ये बन गया स्ट्रिंग। So it is depend on what value you are storing in that variable. Depending on that value, it change its data type. और सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि वेरिएबल जब भी आप डिक्लेयर कर रहे हो एज वेल एज जब भी आप यूज कर रहे हो, पूरे PHP के कोड में कहीं पर भी आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना है या फिर आपको वेरिएबल को यूज करना है तो आपको डॉलर ये सिंबल यूज करना है। डॉलर आ गया, इट मीन्स दैट इट इज एन वन काइंड ऑफ वेरिएबल। जैसे यहाँ पे हम गए, ओके, सेम एग्जांपल में अब यहाँ पे हम लिखते हैं डॉलर एंड सपोज x इक्वल टू हमने डाल दिया हेलो। ओके, और यहाँ पे इको में, अभी इको में मैंने ये सब हटा देती हूँ, और इको में मुझे प्रिंट करना है $x की वैल्यू, सिंपल। तो हमने क्या किया, पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया $x नाम का, उसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर दी और इको में $x को प्रिंट किया। अब यहाँ पे जाके हम इसको रिफ्रेश करेंगे। सो x के अंदर हमने हेलो स्टोर किया था, इसके लिए आउटपुट में यहाँ पे क्या आया, हेलो आ गया। सपोज यहाँ पे जाके मैं इसको वैल्यू डाल दिया सपोज 500, सेव किया, यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया, सो वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे 500 आ गया। So it's totally depend on what value you are entering in the variable that it will going to print. Okay, अब यहाँ पे suppose मैंने डाल दिया कि मुझे ऐसा print करना है कि the shirt price is जो भी x की वैल्यू है वो print होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया the shirt price is, ओके, डबल कोट कंप्लीट। और अभी इसको वेरिएबल को कॉन्केटिनेट करने के लिए प्लस के बजाय यहाँ पे डॉट यूज किया जाता है। डॉट इज यूज टू कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग विथ वेरिएबल। ओके, इसको मैंने सेव किया, यहाँ पे जाके हमने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आ गया द शर्ट प्राइस इज 500। इसमें और एक ट्रिक बताती हूँ कि आपको इसको कॉन्केटिनेट नहीं किया और मैंने $x को डबल कोट के अंदर डाल दिया तो भी वो उसे एक्सेप्ट करता है एज अ वेरिएबल। देखो, तो भी उसने उसकी वैल्यू ली, $x ने प्रिंट किया, $x की वैल्यू को प्रिंट किया।
सो इन योर PHP कोड अगर आप डॉलर और उसके आगे जो भी वेरिएबल है या आप डबल कोट के बाहर यूज करो, डबल कोट के अंदर यूज करो, इको के डबल कोट के अंदर यूज करो, कहीं पर भी लिखो तो वो उसको जैसे डॉलर आता है उसको समझ जाता है कि दिस इज एन वेरिएबल इटसेल्फ, तो वो ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करते हैं, ना कि $x ऐसे प्रिंट करेगा। ओके, सो दिस इज अ ब्यूटी ऑफ PHP। दो बहुत अच्छी फीचर्स है। फर्स्ट इज फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन यू डोंट नीड टू गिव एनी ऑफ द data type, it automatically convert that variable into that data type depend on what value you are storing in that variable. And second, you no need to always concatenate the variable with string. concatenate करना है तो डॉट के साथ कीजिए, नहीं भी करना है तो भी बहुत इजी है, आप डबल कोट के अंदर भी उसको लिखोगे तो भी वो उसकी वैल्यू को प्रिंट करने वाला है। सो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल थिंग विच इज गिवन बाय PHP। तो ये हो गया सेकेंड, हाउ टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स। Now there are some rules for PHP variable. So very first rule is a variable should start with a $sign followed by the name of the variable. A variable name must start with a letter or the underscore character. कोई भी वेरिएबल का नाम डॉलर के बाद आइदर लेटर से या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। It cannot start with a number. A variable can only contain alphanumeric character and underscores, मतलब A to Z 0 to 9 and underscore, ये वैल्यू आप वेरिएबल में यूज कर सकते हो, बट फर्स्ट लेटर आइदर अल्फाबेट और अंडरस्कोर हो सकता है। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, मतलब PHP में $H and $H कैपिटल एज आर टू डिफरेंट वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल की वैल्यू क्या रहने वाली है, डिफरेंट रहने वाली है। ओके, यहाँ पे हमने देख लिया ऑलरेडी कि कॉन्केटिनेट करना है तो डॉट सिंबल यूज कर सकते हो, विदाउट कॉन्केटिनेट किया तो भी आउटपुट दोनों का सेम आने वाला है। Now suppose I have to write down a simple example of addition of two numbers. So how to do that? तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे कैसे करेंगे हम, यहाँ पे मैंने डाल दिया सपोज $x की वैल्यू हमने ले ली है 500, इसको सपोज मैंने यहाँ से डबल कोट से डिलीट कर दिया, इंटीजर जैसा ट्रीट करते हैं हम इसको, एंड $y इक्वल टू 600 एंड देन $z इक्वल टू $x प्लस $y सेमीकोलन। हमने क्या किया, एडिशन कर दिया, और मुझे अभी एडिशन को प्रिंट करना है तो हम लिखेंगे इको the addition of $x and $y is equal to $z. Control S and refresh. Okay, what happened? Ma'am, y variable. क्या हुआ, कैपिटल हुआ क्या? Ma'am, हाँ y वाय कैपिटल झाला है ना? कैपिटल हाँ, यस यस राइट, कैपिटल हो गया बराबर। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, द एडिशन ऑफ x की वैल्यू उसने यहाँ पे प्रिंट कर दी, y की वैल्यू प्रिंट कर दी, और यहाँ पे एडिशन में z की वैल्यू प्रिंट कर दी। तो बहुत इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा PHP, राइट? इसमें कोड करना बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। इसमें हम वापस ये भी देखेंगे हाउ टू डिक्लेयर द फंक्शंस एंड एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग कंपैरिजन कैसे किया जाता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटाबेस कनेक्टिविटी, क्योंकि हमको जो प्रैक्टिकल है PHP का, इट इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक अ डेटाबेस कनेक्टिविटी फ्रॉम PHP टू MySQL। तो HTML से डेटा कैसे रीड होता है, PHP में उसको कैसे रीड किया जाता है, एंड कैसे उसको सेव किया जाता है, दैट ऑल विल गोइंग टू सी इन दिस। सो दिस इज अ सिंपल वन। नाउ वेरिएबल का जो स्कोप है वो कितना होता है, सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल स्कोप। वन इज लोकल,
सेकेंड इज ग्लोबल एंड थर्ड वन इज स्टैटिक। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा रहेगा सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में ग्लोबल स्कोप एंड लोकल स्कोप। लोकल मतलब खाली उस जिस फंक्शन में हम उसको डिक्लेयर करते हैं सिर्फ उसी फंक्शन में उसका स्कोप होता है, और जैसे आपने उसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया एकदम ऊपर, तो थ्रू आउट द प्रोग्राम कोई भी फंक्शन में आप उसको क्या कर सकते हो, उसकी वैल्यू को यूज कर सकते हो, रीड कर सकते हो लाइकवाइज। तो यहाँ पे एक छोटा एग्जांपल दिया है ग्लोबल एंड लोकल स्कोप का, कि जैसे अगर ये फंक्शन है, इस फंक्शन के आउटसाइड में हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया लाइक $x इक्वल टू 5, तो इसकी वैल्यू मैं इस फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकती हूँ, फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर आप देखोगे कि फंक्शन के अंदर जब हम इसको यूज करते हैं तो इसकी वैल्यू ये तो भी यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सकता है, भले मैंने इसको डिक्लेयर ऊपर किया है, फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया है, बट व्हेन आई एम यूजिंग दिस $x इनसाइड एनी फंक्शन, ओके, और इस फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो ये वैल्यू वो पास नहीं कर पाता है। लेकिन फंक्शन के बाहर अगर मैंने इको स्टेटमेंट लिखा है तो उसकी वैल्यू प्रिंट हुई है। देखो ये आउटपुट किसका है, दिस आउटपुट इज फॉर दिस इको स्टेटमेंट जिसमें x की वैल्यू डिक्लेयर नहीं हुई है, और ये आउटपुट क्या है, इस इको स्टेटमेंट का है। तो जब आपको लगता है कि कोई भी वेरिएबल जो है जो आउटसाइड में जब हम डिक्लेयर करेंगे तो वो हर जगह पे उसकी वैल्यू एक्सेसिबल होनी चाहिए, तो हमको ग्लोबल करके कीवर्ड है वो यूज करना पड़ता है। तो जहाँ पे भी आप डिक्लेयर करोगे, जहाँ पे भी आप इसको डिक्लेयर करोगे, अगर आपने कीवर्ड ऐड कर दिया ग्लोबल, तो ग्लोबल जब आप ऐड करते हो तो ये आप फंक्शन के इनसाइड, फंक्शन के आउटसाइड कहीं पर भी डिक्लेयर करो या कहीं पे भी यूज करो तो भी आप the scope of that variable is accessible to everywhere throughout the program। तो आपको ग्लोबल एक कीवर्ड यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। जैसे अगर यहाँ पे मैंने विदाउट ग्लोबल कीवर्ड अगर किसी फंक्शन के अंदर हमने x वेरिएबल की वैल्यू को डिक्लेयर किया 5, और उसके बाद जब मैं इको स्टेटमेंट यूज करूंगी ऑब्वियसली यहाँ पे x की वैल्यू 5 मुझे देगा। लेकिन फंक्शन के बाहर, इस फंक्शन के बाहर अगर मैंने कहीं पे इको स्टेटमेंट लिखा है तो यहाँ पे $x की वैल्यू ये क्या नहीं होगा, इसको एक्सेस नहीं हो सकता है। ओके, सो whenever you want to declare a variable either inside or outside of function but that you can use anywhere, you want to access its value anywhere, तो आपको एक कीवर्ड है ग्लोबल कीवर्ड करके, उसको आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। और इसमें आप देखोगे फंक्शन इज वेरी सिमिलर टू योर जावास्क्रिप्ट फंक्शन। इसमें हमने एक फंक्शन का नाम लिखा, फंक्शन, द नेम ऑफ फंक्शन। अभी यहाँ पे हमको कोई पैरामीटर पास नहीं करने थे, इसलिए ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, और जो भी आपको स्टेटमेंट लिखने हैं ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। और जब भी इस फंक्शन को आपको कॉल करना रहेगा तो फंक्शन का नाम क्या है यहाँ पे, जैसे माई टेस्ट, तो यहाँ पे जाके सिर्फ माई टेस्ट एंड सेमीकोलन, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉल हो जाएगा। तो जैसे अगर यहाँ पे हमको लग रहा है कि ये एडिशन का जो कोड है ये मुझे किसी फंक्शन के अंदर लिखना है, तो हमने डाल दिया लाइक फंक्शन add 1, एंड ओपनिंग ब्रैकेट किया एंड यहाँ पे एंड में जाके इसको क्लोजिंग ब्रैकेट किया। ओके, अब मैंने सिर्फ फंक्शन को लिखा है लेकिन कॉल नहीं किया, तो क्या ये रन होगा क्या कोड? यहाँ पे रिफ्रेश किया, कुछ आएगा क्या आउटपुट? कुछ भी नहीं आ रहा है आउटपुट। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर कोड तो लिख दिया, बट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा तो ही फंक्शन का डेटा अंदर का कोड रन होगा। सो फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे? बाय यूजिंग द नेम ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन का नाम क्या है हमारा? add1। तो यहाँ पे हमने डाल दिया add1, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट है, सेमीकोलन। इसको सेव किया। अब मैं अगर इसको रन करूंगी, add1, हाँ मैम add1, यस, थैंक यू, add1 एंड रिफ्रेश किया। ओके, तो फिर इसने क्या किया, कॉल कर दिया फंक्शन को। अगर मुझे इसको पैरामीटर्स पास करने रहेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ आई वांट टू पास की x और y की वैल्यू मुझे यहाँ पे पास करनी है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से सपोज मैंने इसको निकाल दिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, $x, यस $x
$y एंड कॉमा यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग $y किया एंड जब हम आर को कॉल अच्छे करेंगे वैल्यूज दे दूंगा। या you can give a values very similar that you have done in your OP or any other language. इसको सेव किया एंड जैसे रन करेंगे तो वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। अब फिर भी ये स्टैटिक है या डायनामिक है ये फंक्शन, क्या लगता है? फंक्शन स्टैटिक है कि डायनामिक है? स्टैटिक है। स्टैटिक। क्योंकि मैं कितनी भी बार रन करूंगी तो ये आउटपुट चेंज होगा क्या? नहीं। ये डायनामिक कब बनेगा? जब x की और y की वैल्यू रन टाइम हम यूजर से लेंगे, दो टेक्स्ट बॉक्स देके। HTML में हम दो टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, यूजर को दो वैल्यू डालने को बोलेंगे और वो दो वैल्यू रन टाइम हम PHP को पास करेंगे और तब रन टाइम हमको डायनामिक आउटपुट मिलेगा विच इज डिपेंड ऑन यूजर इनपुट। तो हम बोलेंगे तब ये कोड डायनामिक है। अभी फिलहाल अभी भी ये क्या है, स्टैटिक है। तब वो क्लाइंट सर्वर कोड बन जाएगा बिकॉज वी आर टेकिंग अ डेटा फ्रॉम क्लाइंट साइड थ्रू PHP फॉर्म and passing that value to PHP at server side where it is going executed, and again the result or response is giving back to the client again in the form of HTML page. तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि HTML का डेटा हम PHP में कैसे रीड कर सकते हैं और उसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हाउ टू हैंडल द HTML कोड इन अ PHP, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तभी ये कोड डायनामिक बनेगा, तब तक ये हमारा कोड क्या रहेगा, स्टैटिक ही चलने वाला है। नेक्स्ट इज कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर्स है जो आप यूज कर सकते हो? तो ऑल कंपैरिजन ऑपरेटर्स लाइक इन अदर लैंग्वेजेस लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, greater than, less than, greater than, equal to, less than, equal to, not equal to के लिए दो सिंबल आप यूज कर सकते हो, this one और this one also, and double equal to is for equality operator, और एक सिंबल इसमें ट्रिपल इक्वल टू, जिसमें ना तो सिर्फ वैल्यू प्लस दोनों के जो डेटा टाइप है वो भी कंपेयर किए जाते हैं। सो हियर दे आर कंपेयरिंग डेटा टाइप ऑफ x एंड y एज वेल एज